हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर उन सभी बच्चों के लिए है जो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों। इवन कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनके लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें हम हर एक विषय पे प्रकाश डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हर एक पहलू को जो अब तक आप नहीं जान सके, और वो सारी बातें करेंगे जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topics here, the revolutionary. There's an important here. The revolutionaries. The reactionaries policy of British development are deep hatred toward them to among their section of their younger generation of India, and they believe that India could be achieved independent only by the organization of revolutionary movement. As a result, they organized a secret group to be launched or revolutionary activities against the British. Youth were trained in the aggressive method of the violence as a mean of the strength against the British. They attempted to the killing of the unpopular British officials and communities is decorated to be financed their activity and looted army. Their looted arms, there are many of them. Therefore, chose their path of violence is the gain of independence for India. They were called to the revolutionaries. What is a revolutionaries here? The many of them before choose a path of violence to the gain independence for India. This is called to the revolutionaries. They are center of their activity of Punjab, Maharashtra, Bengal, Uttar Pradesh, and Odisha. The prominent is among these revolutionaries were Khudaram Bose and Prafula Chakis and Bhupendra Nath Dutt and the V.D. Savarkar and Sardar Ajit Singh, Lala Hardyal and his Gadar Party and Sardar Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev, Chandrasekhar Azad, etc. There is the most important revolutionaries here. These revolutionaries organized a secret association and murdered many British officers, and depth to the railway traffic and engaged in organized attack of British wealth. In order to overturn to the British ruler through the arms and Kakoris, conspiracies and the planned by the Ram Prasad Bismil and Asifullah Khan and other teams member of Hindustan Republican Association in 1925. In 1928, a Hindustan Socialist Republican Association was formed. The Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh and Bhatukeshwar Dutt and other. The Bhagat Singh and Bhatukeshwar Dutt is where is the bomb inside the Center of Legislative Assembly on 8 April 1929 and protesting against the pass of the Public Safety Bill and the State Debt of Bill arising slogan of Inqilab Jindabad. The Inqilab Jindabad is a long lapse of revolution. Inqilab Jindabad, though no one was killed or injured in the bomb incident,
and following trial to court of this and other cases. Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were hanged in the 1931 and there are sacrifices provided as a incentives to the people and they were regarded to the martyrs and become the symbol of national unity and aspiration. On your screen, there is a most important picture of here of Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru and Chandrasekhar Azad. There is a most important people for the revolutionaries. जब हमने अंग्रेज़ों से शांति में बातें किया तो अंग्रेज़ों को शायद ये लगा कि इनमें कोई दम नहीं है और ये शांति प्रिय व्यक्ति हैं, लेकिन जब हमने जो है हथियारों का दामन थाम लिया तब अंग्रेज़ों को लगा कि अब यहाँ रहना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और ये बात बताती है क्रांतिकारियों ने, कहते भारत में ऐसे बहुत से सुपुत्र हुए जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी बेशकली जो है कुर्बानी दे दी, लेकिन कहते हैं इतिहास में अपना नाम जो है दर्ज कर लिया और भारत की स्वतंत्रता को निश्चित कर दिया। और उनकी ही कुर्बानी थी जिसके कारण अंग्रेज़ों को ये लगा कि अब शायद यहाँ पर हमारा रहना उचित नहीं है, क्योंकि इन्होंने हिंसा का सहारा ले लिया है। क्योंकि जब तक हमने अहिंसा का सहारा लिया तब तक उन्होंने हमें कमज़ोर समझा, लाचार समझा, लेकिन जब हमने हिंसा का सहारा लिया, जब उनके ही लोगों को हमने यहाँ पर मारना शुरू किया, तब उनको लगा कि अब भारत में उनकी जो है जड़ मजबूत नहीं हो सकती। चाहे हम फूट डाल लें, चाहे राज करने की नीति अपनाएं, चाहे विभाजन का नीति अपनाएं, अब ये शांत रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये सारे क्रांतिकारी एक हो गए हैं। कहते हैं जब हम एक रहेंगे तो हमें कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कहते हैं उतना किसी देश में दम नहीं जो हमारी एकता को हिला सके। इतना बड़े कोई नेता अभी नहीं हुआ है जो हमारी एकता को हिला सके। कहते हैं ऐसे कोई संत साधु नहीं है जो भारत की एकता को, अखंडता को खंडित कर सके। हम अनेकों में एक हैं। हमारा भारत सबसे महान है, सभी देशों में अलग अपनी पहचान है। और ये बात 1857 के बाद जब बहुत से क्रांतिकारी जो है 20वीं शताब्दी में अपने आप को रिप्रेजेंट करके दिखाया, यानी 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के अंतराल में बहुत से क्रांतिकारी ने अपना जो है इस बात को मनवाने को अपना लोहा तैयार किया। तो ये हमारे जो यहाँ टॉपिक आया है क्रांतिकारी। कहते हैं अंग्रेज़ों के प्रतिक्रियात्मक नीति ने भारत की युवा पीढ़ियों के लोगों के बीच एक गहरी घृणा पैदा कर दी। क्योंकि अगर आपको बता दूं कि 1857 क्रांति में कोई युवा वर्ग ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, न पढ़े लिखे व्यक्तियों ने 1857 क्रांति में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जब इनके साथ बुरा व्यतीत हुआ, जब इनके साथ बुरा हुआ, तब कहते हैं जो युवा पीढ़ी थे उनको भी जो है अंग्रेज़ से घृणा करने के लिए मजबूर कर दिया। और यह पीढ़ी विश्वास करती थी कि एक संगठित आंदोलन के द्वारा भारत स्वतंत्रता पा सकता है। और परिणाम स्वरूप उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियां आरंभ करने के लिए गुप्त समूह संगठित किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ ताकत के लिए युवाओं की हिंसा के उग्र तरीकों से प्रशिक्षित किया गया। कहते जिन्होंने उग्र हिंसा का सहारा लिया वो अनपढ़ नहीं थे, वो जानते थे कि अंग्रेज़ ऐसे जानने जाने वाले नहीं हैं। अगर हम एक गाल हाजिर करते हो दूसरे गाल पे भी मार के चले जाएंगे हमें। तो इसलिए उन्होंने जो हथियार का सहारा लिया, क्योंकि उनकी इतनी भारत में कूनीतियाँ थी जिससे वो सहन नहीं कर सके। उन्होंने कम प्रसिद्धि वाले अंग्रेज अधिकारियों को मारने का प्रयास किया और अपने क्रियाकलापों में धन के लिए डकैती की और हथियारों को लूटा भी, क्योंकि उस समय उनके पास हथियार नहीं थे। उनमें से अधिकतर भारत की आज़ादी पाने के लिए हिंसा का मार्ग पर चल गए। उन्होंने क्रांतिकारी कहा जाने लग गया और ये पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा उनके क्रियाकलापों का मुख्य केंद्र बन गया। पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा इनके क्रियाकलापों का महत्वपूर्ण स्थान था। और इन क्रांतिकारियों में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, भूपेंद्र नाथ दत्त, बी.डी. सावरकर, सरदार अजीत सिंह, लाला हरदयाल और उसकी गदर पार्टी और सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर
आज़ाद आदि प्रमुख थे जिनका कुर्बानी के आज भारत भुला नहीं सकता, क्योंकि इनके उग्र नीतियों के कारण ही अंग्रेज को यहाँ से जाने में मजबूर कर दिया। बेशकली अंग्रेज़ों ने इनको जो है हत्या कर दी, लेकिन फिर भी इन्होंने वो कार्य करके चले गए जो आने वाला युवा पीढ़ियों में जोश भर सकता था। इन क्रांतिकारियों ने जो गुप्त संघ बनाए और कई ब्रिटिश कर्मचारियों को मार दिया। इवन की रेलवे यात्रा बाधित भी किया और ब्रिटिश धन पर संगठित होकर आक्रमण करते रहे। और कहते हैं 1925 में राम प्रसाद बिल्लम अल्लाह खान और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने हथियारों के बल पर ब्रिटिश शासन के पलटने के लिए ककौड़ी षड्यंत्र की योजना बनाई। ककौड़ी षड्यंत्र में जो था, उन्होंने ट्रेन को लूटने की पूरी प्रावधान किया था, जहां उनके सारे जो है खजाने जा रहे थे अंग्रेज़ों का, और उन्होंने जो है ककेरी घटना को बहुत बेखूबी अंजाम दिया और उनको अंग्रेज़ों को समझाने में वो सफल हो गए कि भारतवासी और भारत के नौजवान अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। जो भारत की एकता में फूट डालेगा उसका सदैव ही बुरा हाल ही होगा, ये उन्होंने बता दिया, क्योंकि भारत की एकता को कोई भी खंडित नहीं कर सकता। भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी धर्मों का कहते मुख्य स्थान है। यहाँ पर हर व्यक्तियों का स्वतंत्रता पूर्वक रहने का पूरी जो है छूट है। और जब ये सारे एक हुए तो अंग्रेज यहाँ से फुर हुए। कहते चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेदार और अन्य ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का निर्माण किया और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है पब्लिक सेल्फ बिल या ट्रेड लिबर्स बिल के पास होने के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को विरोध करते हुए बम फेंका गया। कहते हैं ये बम बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उनको विचार था कि जब तक हम उनके कानों के सामने बम नहीं फोड़ेंगे उनको समझ नहीं आएगा। और उन्होंने एक नया जो है नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे वो लोग। इधर भी इस घटनाक्रम में ना कोई मारा गया, ना ही कोई घायल हुआ, क्योंकि बम जो गिराई गई थी ऐसे जगह पर गिराई गई थी जहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। कहते हैं भगत सिंह का कोई मतलब नहीं था कि कोई इसमें आहत हो, सिर्फ वो अंग्रेज़ों को जगाना चाहते थे और बताना चाहते थे कि आपके पास हथियार हो सकता है तो हमारे पास भी सभी चीज़ की सुविधाएं मौजूद है। और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। दूसरे केस के लिए उन पर बाद में मुकदमा भी चलाया गया और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जो है 1931 में फांसी दे दी गई। उनके बलिदान ने लोगों के लिए प्रेरणा का काम किया और उन्हें शहीदों का दर्जा भी दिया गया और वो भारत की एकता और प्रेरणा के प्रतीक भी बन गए। तो कहते हैं इनकी कुर्बानियों को नहीं भूला जा सकता है और इनकी जो उन्होंने कोशिश किया, उनकी कोशिश बहुत बड़ी थी और भारत के आज़ाद कराने में भी उनका अहम स्थान था और ये बात को कभी भारत भूल नहीं सकता। चलिए देखते हैं उनके कुछ तस्वीर जो आपको भी महसूस कराएगा कि ये क्रांतिकारी कितने कम उम्र में अपनी प्राण की आहुति दे दिए भारत माता के लिए। आपके स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं सबसे पहले भगत सिंह हैं, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में भारत माता के लिए जो है अपनी जान की न्यौछावर कर दिए। दूसरे नंबर पे सुखदेव हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और राजगुरु के साथ चंद्रशेखर आज़ाद के भी तस्वीर लगे हुए हैं जो कभी कहते हैं अंग्रेज़ों को मात देने में सबसे आगे थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने ये प्रण लिया था कि वो कभी भी अंग्रेज़ के गोलियों का शिकार नहीं होंगे और इन्होंने बेखूबी करके भी दिखाया। जब अंग्रेज़ों ने इनको चारों तरफ से घेर लिया तो इनके जो है बंदूक में सिर्फ एक गोली थी और एक गोली से ब्रिटिश अफसरों को मारा जाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने स्वयं को ही गोली मार के जो है ये साबित कर दिया कि हम तुम्हारे हाथ लगने वालों में नहीं हैं, तुम हमें कभी जिंदा पकड़ नहीं सकते हो। हमने अपनी भारत माता के लिए कुर्बानी दे दी है और आने वाला समय में अपनी पहचान बना ली है। Our next topic is important here, the development of socialist ideas. There is an important topic here, the development of socialist ideas. A significant feature of the 12th century was the development of socialist idea in a Congress and outside it. The peasant now started to asking for the land reform and ambitions of
zamindari system and reduction in the revenue and debt relief. The All India Trade Union Congress, which was founded in 1920, and the work to the improvement in there is a worker as a working and living condition. There is a most important time 1920 is here. It's mobilized that the worker to be cases of complete independence with a help to the movement of the board based. Some prominent socialist and the communist leader where is the M.N. Roy and S.A. Ganges and Ambani's is a Mukhapadyas and the Nalin Gupta and Muzaffar Ahmad and Shaukat Usmani and Ghulam Hussain and the Singh rebels Chetar and G.S. Adhikari and their P.C. Joshi. There is a most important name here, the prominent socialist and communist leader here. They outlined their course of the revolution through the transformation of individual strike into a general political strike. The development of spontaneous peasant movement and nationwide movement for their complete independence as well as the spirit of revolutionaries is propaganda amongst the police and their army. The struggle against the imperialism was the underlying slogan. In 1936, when the Nehru was a president of the Congress, and he declared at the Lucknow session that the solution to be Indian as a problem and lay in the adoption of socialist idea. Nehru was deeply influenced by the Karl Marx. Nehru was influenced by the Karl Marx. Karl Marx is the writer for sociology. Even Subhash Chandra Bose was influenced by the socialist ideas. Because of difference with the Gandhi, and Bose resigned from the Congress and formed his own forward bloc. That is important here. यहाँ जो हमारे समक्ष टॉपिक आया है सामाजिक विचारों का विकास, कहते हैं उस समय सामाजिक विचारों का काफ़ी विकास हुआ, क्योंकि ये समय काल ऐसी थी जब तक सामाजिक विचारों का विकास न होता तो शायद भारत आज़ाद भी न होता। 20वीं सदी के महत्वपूर्ण बातें कांग्रेस में और इससे बाहर सामाजिक विचारों का उत्थान थी। अब किसान भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा का अंत राजस्व में कमी और दर्ज में छूट के लिए कहने लग गए थे। यानी अब काफ़ी सुधार हुआ और किसान भूमि सुधार जमींदार प्रथा का अंत करने और राजस्व में कमी कर्ज में छूट के लिए वो काफ़ी जो है प्रोत्साहित करने की वकालत कर रहे थे। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। अब देखिए ये कई बार एमसीक्यू के अंतर्गत क्वेश्चन आता है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब हुई। भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई और मौजूदा काम तथा रहन सहन की व्यवस्था के विकास के लिए काम करता था और इसने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लोगों को प्रेरित भी किया, जिसने आंदोलन को विस्तृत करने में काफ़ी मदद किया, क्योंकि आंदोलन को जो है विस्तृत करने में इनकी बहुत बड़ी हाथ थी। कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक कम्युनिस्ट नेता थे M.N. राय, S.A. डॉक्स, अंबानी मुख्याध्याय, नलिनी गुप्त, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम हुसैन सिंगरावल, चेतर, G.M. अधिकारी और P.C. जोशी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे और उन लोगों के क्रांति की राह तय की। कहते पृथक हड़ताल से उसका सामान्य राजनीति जो है हड़ताल में रूपांतरण, किसानों के अपने आप हड़ताल का विकास और पुण्य स्वतंत्रता के लिए राज्यव्यापी आंदोलन और पुलिस सेनाओं में क्रांतिकारी विचार फैलाना, ये सारे विचारधारा इनकी थी। ये सारे लोग जो थे उन लोगों के क्रांति की राह तय किया और पृथक जो है हड़तालों से उसका समान राजनीतिक हड़ताल में रूपांतरित किया। यानी किसानों को भी हड़ताल में सम्मिलित किया और इस तरह से देखा जाए तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन और पुलिस और सेना में क्रांति विचार फैला दिया। कहते साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई एक प्रमुख नारा थी और 1936 में जब नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब उन्होंने लखनऊ अधिवेशन में घोषणा की कि भारत की समस्या का दल सामाजिक विचारों के अपनाने में ही निहित है। और नेहरू कार्ल मार्क्स से काफ़ी हद तक प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स आपको पता है कि एक राइटर हैं जिन्होंने बहुत से समाज शास्त्र के ऊपर जो है अपनी लेख लिखी है और समाज कैसे होगी उन पर बहुत अच्छे विचार रखे थे।
और नेहरू जो है कार्ल मार्क्स से काफ़ी प्रभावित थे। सुभाष चंद्र बोस भी सामाजिक विचार से प्रभावित थे, यानी सुभाष चंद्र बोस जो है सामाजिक विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। और गांधी जी से मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और अपने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक। और ये इन्हीं कारणों से हुआ क्योंकि गांधी जी में और सुभाष चंद्र बोस में बन नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुनिश्चित किया। तो our next topic is important here. The communals divided. There is an important topic here. Communals divided here. The policy of divided and the rule was evaluated the rise in the days of the East India Company, and when the Britishers were established themselves and ruler of India. You have read how to company set on one India ruler against the other, and ultimately it has become of disputable rulers. You have seen that in the later half of the 19th century, a nationalism started to growing. Now the British government found it is prudent to ultimatize there is a policy of divided and rule and drive as a various between to the Hindu and Muslims. The British had a look upon their Muslims with the disfavor of dispensations and once the revolt of 1857. But now they realize that in order to the contracted their growing nationalism, time had come to the appease their Muslims. The government seizes every opportunity to set the Indian against one another on the basis of the religions and creating hostility between them. Ultimately, it is the accordance with their policy separated to electorate for their Muslim were established. You have read about the formation of the Muslim leagues, which whatsoever there is a seed of colonialism. There is a Muslims league, legals is a leagues. There is a which is there is a seed of colonialism. You will remember that a league had to be formed on the encouragement of British officer. That is important here. There is a Muslim leagues had been formed on the encouragement of British official. The Communal Award of 1932 was the continuance of the policy because it is allowed to separate a electorate and reservation of the seat to be a depressed classes also. And suppressed electorate were a first demand by the Muslim in 1906 and introduced for them under the Morales Manto reform of 1907. There is a most important Morales Manto reformers here 1907, and this was done with the view of to be built up by Muslim colonialism as a counterpoise against Indian nationalism. Under the Montfort reforms in 1999, there is the extended of the Sikh. Under their Montfort reform 1999, there is extended for the Sikh and European Anglo-Indians, Indian Christians, etc. Under the Act of 1935, 17 separated electorate were to the constituted and is related to the communal electorate were on the unmixed evil. And they hampered the growth of national unity. The two national theory appeared in 1938 and was clearly communicated by the Jinnah in 1940. Once of the demand for the Pakistan was made, it was received direct and indirect encouragement of the British authorities. The immediate their case of emergence of demand for Pakistan was the refusal of Congress from the coalition ministries. After the election of 1937, the county seemed to be defeating to both the marches and the rain. And under the circumstances, the partitions was accepted as a necessary evil. And the only way of getting the right of British ruler and preventing the complete breakdown of law and order. सांप्रदायिकता एक ऐसी आग है जिसमें जिसने लगाया वो भी जलता है और जो नहीं लगाया वो भी जल जाता है। और कहते हैं ये सांप्रदायिकता एक ऐसा शब्द है जो किसी भी देश को ले डूबता है।
लेकिन फिर भी कहते हैं जब अंग्रेज थे यहाँ पर, उन्होंने सांप्रदायिकता का जो है बहुत बड़ी बीज बोई और भारत के दो भागों में बांट दिया। और कहते हैं पुराने समय के नेता इस बात को समझ गए थे कि सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ी आग होती है। लेकिन देखा जाए तो अंग्रेजों का ही आज के समय में राजनीतिक नेता अनुसरण कर रहे हैं। सांप्रदायिकता, दंगा फसाद आज आधुनिक युग में ये होना एक आम सी बात है। किसी भी बात के अंतर्गत ये बहुत ही आसानी से जो है फूट पड़ती है और इसमें आम जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है। ये बड़े बड़े लोग जो होते हैं कमेंट करते हैं और इससे जो है बड़ी बड़ी मुसीबतों को बुलाते हैं और इससे उनको फ़ायदा होता है। आपने देखा होगा जब भी वोटिंग होती है तो ये लोग जो होते हैं वोटिंग कैसे बांटते हैं। हिंदू वोटिंग यहाँ अधिक है, मुस्लिम वोटिंग यहाँ अधिक है, ठीक है, जनजाति वोटिंग यहाँ पर अधिक मिलने वाला है, इसलिए जनजाति क्षेत्र से लोगों को खड़ा करो। तो ये सांप्रदायिकता का ही आग है और ये आग कभी ख़त्म नहीं होगी। कहते हैं उस समय के जो बड़े बड़े नेता थे बात समझ गए थे कि सांप्रदायिकता एक ऐसी आग है जो बहुत ही खतरनाक परिस्थिति को पैदा कर सकता है। और हुआ भी। भारत का विभाजन कई हद तक सांप्रदायिकता का ही एक अंग था। हम उस समय के नेताओं की जो है अपने ऑफिसों में, अपने दफ्तरों में जो है तस्वीर लगाते हैं, लेकिन अनुसरण हम अंग्रेज़ों की बातों का करते हैं। तो ये कैसी, कहते हैं उनके प्रति भक्ति निष्ठा रही। उनके हम जन्मदिन मनाते हैं, बहुत से उत्सव मनाते हैं, लेकिन उनकी बातों का कभी अनुसरण नहीं करते कि उन्होंने सदैव भारत को एक करने के लिए वकालत की। लेकिन फिर भी आज के नेता लोग इस बात का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। बेशक जब उनके बर्थडे होगा, उनकी जो शहीदी दिवस होगा, उस पर वो लोग अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, लेकिन बाद में देखा जाए तो जो है उनकी बातों के उलट कार्य कर रहे होते हैं। तो ये सही नहीं है। सांप्रदायिक विभाजन जो होती है बहुत बड़ी है और इसका अनुसरण सबसे पहले जो था अंग्रेज़ों ने किया था। उन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाया। कहते हैं आज के समय में आपको देखने को मिलता है, देखते हो हर क्षेत्र में बड़े बड़े शासन जो होती है हिल जाती है। तो यही बात है कि आपस में मंत्रियों में फूट डालो और अपना शासन को स्थापित कर लो। तो आज ये आम हो चुकी है। आज आधुनिक युग में देखिएगा तो कहते हैं सरकार किसी और की बनती है और 1 साल 2 साल के बाद सरकार किसी और की बन जाती है। तो वही है, मंत्रियों में फूट डालते हैं और अपने शासन को कायम रखते हैं। तो ये अंग्रेज की नीति थी और वो आज जो है हमारे लोग जो है हमारे देश के मंत्री लोग सब अपना के अपना सिक्का को जमा रहे हैं। कहते हैं फूट डालो शासन करो नीति का आरंभ ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन दिनों में किया था जब अंग्रेज अपने आप को भारत के शासक के रूप में स्थापित कर रहे थे। और अपने पढ़ा भी होगा कि कैसे कंपनियों ने एक शासक को दूसरे के खिलाफ किया। जैसे आज के समय एक मंत्री दूसरे मंत्री के खिलाफ कर देते हैं, सेम कंडीशन है। कहते हैं समय बदल गया है लेकिन कंडीशन वही है, तरीका वही है। अंत वह स्वतंत्र शासन बन गए क्योंकि आपस में वो लोग फूट डालते थे और स्वयं ही वो शासक बन गए। आपने देखा कि 19वीं शताब्दी के समाप्ति के पश्चात ये सभी राष्ट्रीय उत्पन्न होने लगी थी और अब ब्रिटिश सरकार ने पाया कि फूट डालो और शासन करो की नीति को बढ़ाकर हिंदू और मुस्लिम के बीच जो देर पैदा करना ही बुद्धिमानी है। अब देखिए उस समय अंग्रेज ने इस बात को अनुसरण किया कि अगर भारत में राज करना है तो हिंदू मुस्लिम के बीच दोष पैदा करना ही बुद्धिमानी है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो हिंदू को कह रहे थे कि ये हिंदू राष्ट्र है और मुस्लिम को कह रहे थे ये मुस्लिम राष्ट्र है। अब देखिए वो दोनों के मन में ये बात के उन्होंने बीज बो दिया और इसके कारण क्या हुआ, हिंदू अपने देश राष्ट्र को मांग रहा था, मुसलमान अपने राष्ट्र को मांग रहा था। और अंग्रेज को ये बात पता था कि ऐसे करने से ये आपस में लड़ेंगे और इनकी एकता टूटेगी और हम और भी टाइम तक यहाँ पर रह सकते हैं। आज भी देखिए यही बात का अनुसरण हो रहा है। हमारे बड़े बड़े लोग जो है भारत को हिंदुत्व राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हमारे देश में कई धर्म के लोग रह रहे हैं। इसलिए भारत को भारत रहने दें, हिंदुस्तान रहने दें, लेकिन इसको एक धर्म के रूप में इसको ना देखें। यहाँ पर सभी धर्म के लोग रह रहे हैं, बड़े प्यार से रह रहे हैं, सभी अपना जो है अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं।
तो हिंदुत्व बना के क्या मिलेगा? भारत में देखिए हर जाति के लोग पूरे पूरे अमाउंट में हैं और रह रहे हैं, खुशी से हैं। तो कहते हैं इस ऐसा फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण नहीं करना चाहिए। अगर वो करते हैं तो आगे उनको ही कहते हैं जैसे बीज बोओगे वैसे ही पाओगे। तो ये बात शायद अंग्रेज नहीं जानते थे। उन्होंने बेशकली इस बुद्धिमानी यही समझी कि हिंदू मुस्लिम के बीच जो है बैर की भावना उत्पन्न करना है, तो उनको जो है हिंदू मुस्लिम बनाना है। अंग्रेजों को 1857 के विद्रोह से ही मुस्लिम अप्रिय और संदेशस्पर्श होने के कारण अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन अब उन्हें लगा कि बढ़ते राष्ट्रवाद को रोकने से मुसलमान खुश करने का समय आ गया है। यानी मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्होंने राष्ट्रवाद का सहारा लिया। सरकार ने उन सभी अफसरों पर अपने अधिकार जो है अफसरों का अधिकार कर लिया जिन्हें भारतीय धर्म के आधार पर एक दूसरे को समक्ष होते थे, और उन लोगों के बीच उन्होंने शत्रुता उत्पन्न कर दी थी, क्योंकि आपस में शत्रुता उत्पन्न करना ही उनकी बुद्धिमत्ता थी। अंततः इसी नीति के कारण मुसलमानों का अलग चुनाव क्षेत्र स्थापित हुआ, क्योंकि पहले एक चुनाव स्थल था। अब देखिए अब उनके मन में जो है मुस्लिमित्व की जो भावना थी वो डाल दिया उन्होंने, और इसके कारण क्या हुआ, मुसलमानों ने अपनी अलग चुनाव क्षेत्र स्थगित कर लिया। अपने मुस्लिम लीग के निर्माण के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें सांप्रदायिकता के बीज बोए गए थे। आपको याद होगा कि ब्रिटिश अधिकारियों के बढ़ावे के कारण ही लीग की स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं होनी थी। लेकिन अंग्रेज ये बात जानते थे कि अगर मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाएगी तो जैसे कांग्रेस लीग की स्थापना हुई थी, कांग्रेस नेशनल पार्टी की स्थापना हुई थी, उसी प्रकार नेशनल जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होगी, तो ये दोनों में टक्करपन होगी, यानी आपस में टकराएंगे और आपस में ही लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने ये बीज बो दिया कि अगर हिंदू का एक राष्ट्र हो सकता है, एक पार्टी हो सकती है, तो एक मुस्लिम का भी होना चाहिए। क्योंकि यहीं से जो है उन्होंने ये जो है बीज बोने का सूत्रपात कर दिया, और तब से जो है फूट की ऐसी लहर उठी जो देखा जाए तो 1947 में जाके भी शांत नहीं हुई और भारत को दो भागों में बांट दिया। तो यही दर्द आज के समय में भी बड़े बड़े लोग, नेता लोग, बड़े बड़े साधु संत सब भारत को देने के लिए अग्रसर हैं, जो सही नहीं है। कहते हैं इसमें आम व्यक्तियों की ही जो है बहुत हानि होगी, सरकार की हानि कभी नहीं होती है। सरकार की हानि कहाँ से होगी? सरकार ने क्या मेहनत करके उसको लगाई है? कभी नहीं लगाती। तो आम व्यक्तियों से पैसे वसूल के बनाती है, तो आम जनता की ही जाती है। कोई भी अगर सांप्रदायिक दंगा के कारण बर्बाद होता है तो आम जनता का ही जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर रेल को आप नुकसान पहुंचाते हो तो सरकार अपनी जेब से तो पैसा लगाएगी नहीं। कहते हैं रेलवे में किराया बढ़ा देगी, यातायात के साधनों में जो है किराया बढ़ा देगी, और जो आपने नुकसान किया है उसका भरपाई वो कर लेगी। तो कहते हैं दंगा फसाद में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, सिर्फ अपना जो है शांतिमय ढंग से जो है सरकार को चुनिए, और जब इलेक्शन होता है तो उस समय बताइए कि हम उनको चुनेंगे जो हमारे लिए हैं, हम उनको नहीं चुनेंगे जो सांप्रदायिकता की आग लगाते हैं। 1932 के मैकलॉ अवार्ड इसी नीति की एक पहल थी, क्योंकि इसने ही समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण और अलग चुनाव क्षेत्र की अनुमति दे दी थी। अब देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो आरक्षण करने की बात रखी गई वो बहुत ही सही नहीं थी, और आज के समय में तो बिल्कुल ही सही नहीं है। क्योंकि आरक्षण देखिए दोस्तों, आज हर एक बच्चा मेहनत करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो, या जनजाति किस्म का हो, किसी भी किस्म के व्यक्ति हो, सब बच्चे मेहनत करते हैं, तो सबका जो है वो किसी पद के लिए सामान्य अधिकार है। लेकिन आज देखा जाए तो आरक्षण के कारण जो है कुछ लोग फ़ायदा उठा के आगे बढ़ जाते हैं, और जो व्यक्ति काफ़ी मेहनत कर देते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो इसमें सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि आज के समय आधुनिक हो गया है, आज सभी लोग समझदार हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं, तो ये जितने भी कोटे बनाए गए हैं वो नहीं होना चाहिए हमारे आज के समय में। इससे बच्चों की मनोबल घटता है। बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे लिए तो ये सीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, हमारा परसेंटेज आए चाहे ना आए, लेकिन हमारी सिलेक्शन होगी नहीं। कई बच्चे जो होते हैं अपने हताश हो जाते हैं। सरकार को इसमें सोचने की आवश्यकता है कि आरक्षण आज के समय में एक बहुत बड़ी चिंगारी है, जो लोगों में आगे समय में आके भड़का भी सकती है। तो ये सोचने वाली बात है कि आरक्षण तो जो है आज के समय में ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि हम आधुनिक युग में हैं,
सभी व्यक्तियों को पूरा पूरा मौका मिलता है, सभी को हर तरह के एजुकेशन मिलते हैं। जो बच्चा मेहनत करेगा, जो आगे बढ़ना चाहेगा वो बढ़ेगा। लेकिन आरक्षण के रूप में उनके लिए सीटों को आरक्षित कर देना सही नहीं है, क्योंकि आज कोई वर्ण नहीं है, ना कोई आज क्षत्रिय है, ना कोई आज ब्राह्मण है, ना कोई वैश्या है, ना कोई आज शूद्र है। आज सब सामान्य हैं। आज हर व्यक्ति हर कार्य करने को जिज्ञासित है, तो इसलिए आरक्षित होना नहीं चाहिए। और यही बात जो है 1932 में अंग्रेजों ने अनुसरण कराया और अलग चुनाव क्षेत्र की अनुमति दे दी गई। अलग चुनाव क्षेत्र की पहली बार मांग 1906 में मुस्लिम लीग ने किया था। देखिए, पहली बार अलग चुनाव करवाने की जो है मुस्लिम लीग ने किया, क्योंकि पहले ही अंग्रेजों ने इनमें फूट डाल दिया था इनकी जो एसोसिएशन बना के। और 1907 को मार्लो मिंटो सुधार में इसी लागू भी किया गया और इसे भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ मुस्लिम संप्रदायवाद को बढ़ाने के ध्यान में रखकर बनाया गया था। मोटाफोर्ड सुधार 1919 के तहत उसे सिख, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियन आदि का भी बढ़ावा गया। और 1935 के अधिनियम के अधीन 17 अलग चुनाव क्षेत्र भी बनाए गए। देखिए, 17 अलग चुनाव क्षेत्र बनाए गए। 2 राष्ट्र सिद्धांत 1938 में लाया, जिन्हें जिन्ना ने 1940 में खुलकर इसका समर्थन किया। अब जिन्ना क्यों नहीं समर्थन करेंगे, क्योंकि उनको तो एक नया राष्ट्र बनने वाला था, इसलिए जिन्ना ने 1940 में खुलकर समर्थन किया। जब पाकिस्तान की मांग की गई तो अंग्रेज हुकूमत ने सीधे और प्रत्यक्ष रूप से उसको प्रोत्साहित किया। यानी अंग्रेजों को तो पता था कि इनको अगर जाते जाते इनमें फूट डालना ही उनके लिए सही रहेगा, और अंग्रेजों ने यही किया। उन्हें प्रत्यक्ष रूप से जो है इसका प्रोत्साहित किया पाकिस्तान की मांग को। और पाकिस्तान की मांग को प्रकट होने का तत्कालीन कारण था 1937 के चुनाव के बाद अंग्रेज़ों की मिली जुली सरकार बनाने से इनकार था, क्योंकि उस समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू मिली जुली सरकार बनाने के पक्ष में बिल्कुल ही नहीं थी और देश अराजकता और बर्बाद होने के कगार पर था। तो इन कारण से जो है वहाँ पर सांप्रदायिकता की आग लगाई गई, जो आपको पता है 1947 की जो दर्द था वो झेलना पड़ा। तो मैं त्रिपाण स्टडी सेंटर यही बात बोलते हैं कि सदैव हमें उचित करना चाहिए, जो देश कल्याण की बात हो उसको करना चाहिए। कभी भी सांप्रदायिकता जैसी आग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप लगा दोगे लेकिन ना जाने कितने बच्चे ख़त्म हो जाते हैं, कितने जो है माँ का कोख उजड़ जाता है और कितने विधवाएं हो जाती है, जो सही नहीं है। सांप्रदायिकता के अंतर्गत कोई भी विचारधारा है तो उसको पनपने ना दे, क्योंकि ये देश के हित के लिए कभी भी सही नहीं है। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी और बहुत ज़रूरी थी। आप लोगों को भी कोई सांप्रदायिकता के अंतर्गत बातें कहता है या कोई मैसेज आता है, कुछ भी होता है, तो आप उस पर बिल्कुल ध्यान मत देना, क्योंकि आप बहुत ही महत्वपूर्ण हो, देश के भविष्य हो। अगर आप इनके चक्रों में पड़ जाओगे तो जीवन आपका भी नष्ट हो जाएगा। आज के समय में देखिए, बहुत से लोग जो हैं हर तरह से के हरकंडे अपना रहे हैं भारत के नौजवानों को बरगलाने के लिए, लेकिन आप समझदार हो, आप वही करो जो देश कल्याण के लिए हो, आपके घर के कल्याण के लिए हो, आपके माता पिता के लिए महत्वपूर्ण हो। क्योंकि पढ़ाई लिखाई का अर्थ यही होता है कि आप एक समझदार बनो, जागरूक नागरिक बनो, यही महत्वपूर्ण बात होता है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण और भी बात है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, तभी ये विचारधारा दूसरे बच्चे तक भी पहुँचेगा और वो भी देश कल्याण में और अपने जीवन को जो है प्रोग्रेस करने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ेंगे नहीं, अच्छा बनेंगे नहीं, तो वो ज़िंदगी के इस रहस्य को नहीं समझ पाएंगे कि कौन उनको गलत रास्ता दिखा रहा है और कौन उनको सही रास्ता दिखा रहा है। क्योंकि कहते हैं, अगर मान लीजिए जानवर पढ़े लिखे नहीं होते, उसको जैसे इशारा करते हो वैसा वो करता है, लेकिन आप इंसान हो, आप पढ़े लिखे समझदार बन सकते हो, तो एनालाइज भी करना सीख सकते हो कि भाई कौन चीज़ गलत है, कौन चीज़ सही है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, और पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कीजिए, तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगा। और आपको पता ही है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए बहुत से वीडियो जो है प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है, ठीक है। उसको आप सिलेबस के अंतर्गत, चैप्टर के अंतर्गत या क्लास के अंतर्गत देख सकते हो, समझ सकते हो।